ابھی انہوں نے ایک اور چال چلی ہے، وہ بھی بتا دوں آپ کو. ہمارے ہی رنگ کے مولویوں کو اٹھا کر میڈیا پہ لا رہے ہیں. لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ تم جس طرح علماء کو لڑانے کی کوشش کر رہے ہو، ہم علماء سے نہیں لڑیں گے. ان علماء سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کون کار فرما ہے. اور اب انہوں نے شوشہ چھوڑا ہے کہ صاحب 29 اگست 2019 کو ایک معاہدہ ہوا تھا اور حکومت کے ساتھ وزارت تعلیم کے تحت رجسٹر ہونے کا فیصلہ ہوا تھا. تو یہ تمہیں یاد ہے کیا؟ ہمیں یاد نہیں. اور جب الیکشن سے پہلے یہ ڈرافٹ تیار ہوا اور اسمبلی میں آیا، اس وقت تم نے یہ شوشہ کیوں نہیں چھوڑا؟ اس وقت تمہیں یہ 2019 کا معاہدہ اس وقت کیوں یاد نہیں آیا؟ اور اب جب اسمبلی اور سینٹ دونوں سے پاس ہو رہا تھا، اس وقت تمہیں یہ معاہدہ کیوں یاد نہیں آیا؟ دوستو سن لو ایک بات، ہمارا حکومت کے ساتھ معاہدہ 2004 میں ہوا. 2004 میں وہ قانون کی صورت میں، بل کی صورت میں اسمبلی میں لایا گیا، باقاعدہ ایکٹ بنا ہے. ایک قانون کے تحت ہم نے اس کو قبول کیا ہے. اگر 1860 کی سوسائٹی ایکٹ میں رجسٹریشن کا مسئلہ تھا تو ایک شق نمبر 21 کا اضافہ کر کے دینی مدارس کے لیے ماحول بنایا گیا. اشکالات دور ہو گئے. بھائی ہم ایکٹ کی بات کر رہے ہیں. ایکٹ قانون ہوتا ہے. تم نے جو وزارت تعلیم کی بات کی تھی وہ تو محض معاہدہ تھا، اس کی تو کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی، اور پھر اس کی خلاف ورزی ہوئی. اب جانتے ہیں اور جان لینا چاہیے کہ دینی مدارس میں ہم سرکار کی مداخلت تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. مدارس آزاد ہوں گے، آزاد حیثیت میں اپنا کام کریں گے. 2004 اور 2005 میں ہم نے آپ کو بتایا اور آپ کے ڈیمانڈ پر ہم نے آپ کے ساتھ معاملات طے کیے. آپ نے کہا مدارس کا مالیاتی نظام، ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے. آپ نے کہا مدارس کا تعلیمی نصاب، ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آئیں بات کرتے ہیں. آپ نے کہا مدارس کا انتظامی ڈھانچہ، ہم نے کہا آئیں ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں. ہم ایک دوسرے کو سمجھانے میں کامیاب ہو گئے. معاملات طے ہو گئے. دینی مدارس میں میٹرک تک تعلیم دی جائے گی، یہ معاملات طے ہو گئے. ان کی صنعت کو ایک مستقل گریجویشن کی حیثیت حاصل ہوگی. پھر 2010 میں معاہدہ ہوا اور یہ طے ہوا تھا. اور پھر جو آپ لوگوں نے وزارت تعلیم کے ساتھ بات چیت کی، اور اس وقت تو آپ کی تنظیمیں بھی نہیں تھیں، اس وقت تو آپ وفاق میں تھے، اس وقت تو آپ کی تنظیمیں نہیں تھیں. اپوزیشن یعنی کوئی تقسیم ہوئی نہیں تھی. وفاق کے نظام میں، اتحاد مدارس دینیہ کے نظام میں، مذاکرات کے نظام میں تو آپ کا کوئی دخل ہی نہیں تھا. آپ کون ہوتے ہیں ہمیں یہ سوال سکھانے والے؟ اب معاہدہ ہوتا ہے تو معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی. معاہدہ ختم کر دیا حکومت نے. اس معاہدے میں یہ تھا کہ مدارس کے رجسٹریشن ہوگی، وزارت تعلیم سے ہم منسلک ہوں گے، ماتحت نہیں ہوں گے. لیکن تم لوگوں نے ایک ڈائریکٹریٹ جنرل بنایا اور کہا کہ اس ڈائریکٹریٹ کے تحت آپ نے رجسٹریشن کرنی ہوگی. اور جب ڈائریکٹریٹ آپ نے بنایا، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نے دینی مدارس کی اجازت دی. تو دینی مدارس، بتاؤ معاہدے میں کہاں ڈائریکٹریٹ لکھا ہوا ہے؟ بتاؤ معاہدے میں کہاں پر ڈائریکٹریٹ جنرل ریلیجس تعلیم کا لفظ کدھر لکھا ہوا ہے؟ آپ نے بعد میں یہ ڈائریکٹریٹ بنا کر ہمیں میسج دیا کہ مدارس ہمارے ماتحت ہوں گے. ہم نے کہا ہم آپ کے ماتحت نہیں ہوں گے. 1860 کے ایکٹ کے تحت ہم نے ضرور رجسٹریشن کی ہے اور کراتے رہے ہیں، لیکن انہوں نے تو کبھی ڈائریکٹریٹ نہیں بنایا. انہوں نے تو کبھی ہمارے معاملات میں مداخلت نہیں کی. وزارت صنعت خلافت نے کبھی بھی وزارت میں مداخلت نہیں کی. وہ رجسٹریشن وہ تو ایک وزارت ڈاک خانے کی حیثیت رکھتا ہے. ہم نے کہا وزارت تعلیم وہ بھی ڈاک خانے کی حیثیت رکھے گا، اس سے زیادہ اس کا کوئی کردار نہیں ہوگا. لیکن انہوں نے ڈائریکٹریٹ بنا کر براہ راست مدارس کو کنٹرول کرنے کا عملی اقدام کر کے معاہدے کے خلاف ورزی کی. اور پھر اس وقت وزیر تعلیم نے بیان دیا کہ دینی مدارس یہ ہمارے وزارت تعلیم کے ماتحت ہے. تم نے معاہدہ توڑ دیا. ہمیں یہ شرط اس وقت بھی قبول نہیں تھی. اس کے بعد آپ نے کہا تھا کہ دینی مدارس کی جتنی رجسٹریشن ہوئی ہے اب وہ رجسٹریشن برقرار رہے گی اور نئی رجسٹریشن کے لیے ہم تعاون کریں گے. آپ بتائیں کہ 2019 کے اگست سے لے کر آج تک تم نے ایک رجسٹریشن بھی بحال کی ہے مدارس؟ ایک بھی
बहाल नहीं की, न कोई नई रजिस्ट्रेशन के लिए ताउन किया जो मुआहदे में लिखा हुआ है। तो जब आपने रजिस्ट्रेशन हमारी बंद रखी हुई है, उस मुआहदे पर आपने अमल ही नहीं किया, मजीद रजिस्ट्रेशन के लिए आप इजाजत नहीं दे रहे थे, तो मुआहदा तो आपने तोड़ दिया। उस मुआहदे में आपने लिखा था कि बैंक अकाउंट्स खोले जाएंगे और उसमें हम ताउन करेंगे। आप बताएं, एक बैंक अकाउंट खुला नहीं, और अभी हाल ही में सुना है कि एक बैंक ने 1000 अकाउंट मदारस के बंद कर दिए। किस मुआहदे की बात करते हो? जिस मुआहदे को तुमने फाड़ा है, जिस मुआहदे को तुमने उछाला है, उसका जिक्र करते हो। और मुकाबला कानून के, मुआहदा तो लफ्जी चीजें होती हैं, डायरेक्टरेट तो एक लफ्जी चीज है। मैं बात करता हूँ एक्ट की और कानून की। मैं कानून से वाबस्ता होकर मदारस को चलाना चाहता हूँ, और तुम मुझे जबानी मुआहिदात याद दिलाते हो। ऐसा बेवकूफ आपने हमें समझा हुआ है। ब्यूरोक्रेसी और एस्टेब्लिशमेंट के हाथों आप जैसे हजरात बेवकूफ बन सकते हैं। हम बहुत सियाने लोग हैं, हमें वो बेवकूफ नहीं बना सकते। और उस मुआहिदे में लिखा था कि गैर मुल्की तलबा उनको 9 साल का वीजा दिया जाएगा ताकि गैर मुल्की पाकिस्तान के मदारस में पढ़ सके। एक वीजा बताओ जो तुमने आज तक गैर मुल्की लोगों को दिया हो। मुआहिदे तो इन चीजों पर मुश्तमिल। बैरून मुल्क तलबा का वीजा कहाँ है? बैंक अकाउंट्स का मुआहिदा कहाँ है? रजिस्ट्रेशन कराने और उसको बरकरार रखने का मुआहिदा किधर है? डायरेक्टरेट जनरल कहां से आ गया बीच में? हमें समझाने की कोशिश करते हैं। बेड़ा घर किया तुम लोगों ने। हम कानून की बात करते हैं, कानून पास हो चुका है, पहले भी कानून पास हुआ था, अब भी कानून पास हुआ है। और जब विफाक एक ऐसा कानून पास करे कि जिसका ताल्लुक सूबों के इख्तियारात के साथ भी हो, तो वही कानून सूबों में जाकर भी सूबाई असम्बली पास करे। इस प्रोसीजर का तो इनकार नहीं कर रहे, लेकिन धोखा क्यों दे रहे हो लोगों को? टीवी पे आकर झूठ क्यों बोल रहे हो? गुमराह क्यों कर रहे हो कौन को? हम पूरी तरह इस सूरत हाल को समझते हैं। तो किसी फोरम पर आकर हमारा सामना तो करो, पता लग जाएगा तुम क्या होते हो। मैं उनको वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ कि दीनी मदारस के हवाले से मीडिया को गलत इस्तेमाल मत करो, एंकरों को गलत हिदायत मत दो। उलमाए किराम को मीडिया में लाकर आप उनको लड़ाने की साजिशें कर रहे हैं। सुनो, अब हमें कहा गया कि आप ये जरूर कहें कि दीनी मदारस 1860 के एक्ट के तहत, सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर होंगी, लेकिन अगर कोई तालीम के तहत उन बाकी तंजीमों के साथ जो बाद में बनी हैं और वो भी खुफिया एजेंसियों ने बनवाई है, अगर उसमें भी कोई मदरसा रजिस्टर होना चाहे तो आप उस पर इतराज नहीं करेंगे। हमने तो फरामदीनी का मुजाहरा किया है, हमने तो आपसे कहा था कि हम उसमें भी इतराज नहीं। अभी एक में यही लिखा हुआ है कि मदारस आजाद होंगे जहां से वो रजिस्ट्रेशन कराना चाहेंगे। आप कहते हैं हमारे पास 18,000 मदारिस रजिस्टर्ड हैं, 22 लाख तलबा हमारे साथ पढ़ रहे हैं। किधर है? हम भी तो मदरसों वाले हैं, हमारे पड़ोस में तो कोई मदरसा नजर नहीं आ रहा। मदरसा बोर्ड ये तो हमारे मरहूम जनरल मुशर्रफ भी बनाया था, तो तुम भी तो उसी का तसलसल हो। न तुम मदरसा हो, न तुम तंजीम हो, न तुम रजिस्ट्रेशन हो। कोई जाता है तो जाए, लेकिन जहां पर किसी कोठे के ऊपर आपने मदरसे का नाम लिख दिया और रजिस्ट्रेशन बना दिया, वो भी हम मदरसा तो ये डम्मी चीजें नहीं चलेंगी, हकीकी मदरसा चलेगा। लेकिन फिर भी मैंने आप पे एतराज नहीं किया, मैंने आपको अपने मुकाबले नहीं समझा। हमने उलमा को आपस में लड़ाना नहीं चाहा। आज आप उठे हैं, आज आप जाग गए हैं, टेलीविजन पे आ रहे हैं, ये हुआ था और वो हुआ था, हमें याद दिला रहे हैं। ओ बचुंगड़ो, तुम हमारे शागिर्द हो, वो तुम्हारी पगड़ियां हमने तुम्हें बंधवाई हैं, और पगड़ियों के ऊपर जो 2-3 चादरें आपने पहनी वो भी हमने उड़ाई हैं। आपको अलहकार मत बनो उन लोगों का जो दीनी उलूम के दुश्मन, जो कुरानी उलूम के दुश्मन हैं, जो हदीस के उलूम के दुश्मन हैं, जो फिक़ह के उलूम के दुश्मन हैं। जदीदियत के नाम पर हमने भी मैटर पढ़े हैं, हमने भी अपने मदारस में ये निसाब राइज किया हुआ है, BA, FA, FSC तक हमारे लोग भी तो पढ़ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सर पढ़ रहे हैं, हमारे दीनी मदारिस के बच्चों ने आपके बोर्ड में इम्तिहानात दिए हैं और पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन दीनी मदरसे के तालिब इल्म ने लिया है आपके बोर्ड। और आज मदारिस और उलमा आमने सामने आ गए हैं, ये फजा अफसोसनाक है। हम हरगिज उलमा का आपस में तसादुम नहीं चाहते, मदरसों का नहीं चाहते। जो मदरसा मेरे नजदीक जैसे मसलकी तौर पर मदारिस को आपस में तसादुम नहीं चाहिए, बरेलवी मदरसा देवबंदी मदरसे के खिलाफ, शिया मदरसा सुन्नी मदरसे के खिलाफ, अहले हदीस मदरसा
मुकल्लिदीन के मदरसे के खिलाफ आप अपना मदरसा चलाओ, अपना मदरसा चलाए, उसके मदरसे से आपको क्या तकलीफ है, आपके मदरसे से उसको क्या तकलीफ है। अगर ताउन नहीं कर सकते तो तसादुम ना करो कम अज कम। लिहाजा अभी जो फजा बन रही है ये हमें कबूल नहीं है। मौलाना भी जज्बात में ना आए और उलमा को ना ललकारें। उलमा काबिल एहतराम है, सब काबिल एहतराम है। जो आपकी तरह नहीं सोचते वो भी काबिल एहतराम है। जो मेरी तरह नहीं सोचता, मेरी राय का मुखालिफ है, मेरे नजदीक वो बहुत काबिल एहतराम है मेरे लिए। जू नहीं कि मेरी तरह सोचे तो मैं उसका एहतराम करूं। तो ये एहतराम उलमा का शुरू से रहा है, उलमा ने ये अदब सीखा है। और अब मदरसों में खुसूसन अगर ये फजा बन गई, फिरका वारियत की तरह अगर ये फजा भी बन गई कि DGRE के मदरसे और इंडस्ट्रियल मदरसे, तो तालिब इल्म जो उसमें पढ़ रहे हैं उनके अंदर ये एक नया तासुब पैदा हो जाएगा। ये एक नई फजा उनके अंदर तासुब की पैदा हो जाएगी और इसको यहीं पे हुकूमत रोक सकती है। वज़राए किराम तशरीफ फरमा हैं, सिद्दीकी साहब हैं और तारड़ साहब हैं और सालिक साहब, हम इन्हें खुश आमदीद भी कहते हैं। और ये वजात करें, मेरा ये ख्वाहिश होगी कि इसी नशिस्त में ये वज़रा वजात करें कि ये नया बिल क्यों पास किया। जब पहले मदारिस का एक्ट बन मौजूद था तो नया बिल क्यों पास किया आपने। उस बिल को उठा के बाहर रखो कि ये फजा खराब करेगा। आपको एक वक्ती सियासी जरूरत पड़ी है तो आपने एक बड़ा बहरान खड़ा कर दिया है, तो आप तलाफी करें। ये हुकूमत का काम है, ये DGRE का फरीजा नहीं है मौलाना साहब के एहतजाज को खत्म करना, या ये हुकूमत का काम है वो इस मसले को हल करे। और मसले का हल ये नहीं है कि उस बिल को दोबारा पेश करके पास कर दे ना, मसले का हल ये है कि मौलाना साहब के साथ मुज़ाकरात करे, मौलाना साहब के साथ मुज़ाकरात करे, बैठे। वो काबिल एहतराम है, मुझे मुमकिन है इख्तलाफ होगा मौलाना फजलुर रहमान साहब से, लेकिन वो एक चेहरा है पाकिस्तान में सियासत का भी और मजहब का भी, और काबिल एहतराम और मोहतरम शख्सियत हैं। हर चंद उनके अफकार, उनके तरीकों से हमें इख्तलाफ होगा तो हम उनके साथ बैठें, बात करें और उन्हें इश्ताल ना जाए। तो एक सीधा सा उन्होंने रास्ता बताया कि सोसाइटी एक्ट के तहत जाके, चूंकि ट्रस्ट बनाते थे, ये अंजुमन बनाते थे, लिहाजा इन्हें वो क्लर्क रहनुमाई करते थे कि आप सोसाइटी एक्ट के तहत दर्ज हो दो। और वो एक रास्ता खुला था, वो कोई बाकायदा फैसला नहीं था हुकूमत का, एक रास्ता खुला था और लोगों ने फिर रजिस्टर करवाए। और बहुत सारे मदारिस जिन्होंने अपने आप को सोसाइटी एक्ट के तहत भी रजिस्टर्ड नहीं करवाया, बस बना लिए और चलाते रहे और मदारिस को अपने हाल पे छोड़ा। न मदारिस की किसी ने कोई हाल पूछा, न मदारिस का कोई पुरसान हाल था। याद है मुझे, मैं छोटा सा था तो मदारिस के बच्चे जाते थे शाम को खाना मांगने के लिए लोगों के घरों में। ऐसे आपने भी देखे होंगे मदारिस, मुझे याद है ऐसे मदारिस थे। तो कोई मुआवनत नहीं करता था। हुकूमत का जीरो किरदार है मदारिस बनाने में अभी तक। हुकूमत नहीं कह सकती कि कोई मदरसा बनाने में इन्होंने कोई मदद की हो या कोई जमीन अलाट की हो या प्लाट दिया हो या कुछ भी किया हो। सब लोगों ने और खैरीन ने, मोमिनीन ने अपनी मेहनत के तहत, और उलमा ने जो बानियान मदारिस हैं, इन्होंने जो जफा बर्दाश्त की है वो एक एक अगर किताबें लिखें तो हमें पता चल जाएगा। बाहर के इस तरह ये मदारिस कायम हुए। और फिर एक और अफसोसनाक दौर पाकिस्तान में आगाज हुआ और वो ये कि दहशतगर्दी आ गई पाकिस्तान के अंदर, अस्करियत पैदा हुई और मजहबी उनसर उसके अंदर आया और मदारिस से जोड़ दिया गया इस सिलसिले को। और फिर उस वक्त भी कंट्रोल नहीं किया गया मदारिस की तरफ दहशतगर्दी या दहशतगर्दी की तरफ मदारिस, ये भी एक नामुबारक जोड़ बन गया। फिर जब कंट्रोल का वक्त आया तो बगैर किसी पॉलिसी के, बगैर किसी स्ट्रेटेजी के दहशतगर्दी रोकने के लिए तमाम मदारिस को गोया दहशतगर्दी का गढ़ करार दिया गया। और फिर एक जैसी एक लाठी से सारे मदारिस हाके जाने लगे, उनका कोई अस्करियत या दहशतगर्दी से ताल्लुक था भी या नहीं था। और इस तरह करते करते मदारिस को कंट्रोल करने की तजावीज़ आती गई और बगैर किसी सर्वे के, बगैर किसी स्टडी के, बगैर किसी मुताले के पॉलिसियाँ बनती थीं, आनन फानन और लागू हो जाती थी। फिर आने वाले दौर में हालात मुख्तलिफ होते थे तो हालात के तहत मदारिस को चलाते गए, जिस वजह से मदारिस का बहरान बढ़ता गया, सख्तियाँ आती गईं। फिर एक वक्त ऐसा आया कि मदारिस के अकाउंट बंद हो गए और मदारिस अपने आप को क्लियर करें कि आप दहशतगर्द नहीं हैं, यानी पहले ये साबित करें कि आप दहशतगर्द नहीं हैं। खूब ये सब कुछ मदारिस ने भुगता है और देखा है, और आप सब मदारिस से वाबस्ता तशरीफ फरमा हैं यहाँ पर हजरात।
اب جب کہ مدارس کے بارے میں باقاعدہ ایک سوچ پیدا ہوئی اور مدارس نے بھی تقاضا کیا ہے، اور ایک بڑی معقول بات ہے کہ مدارس تعلیمی ادارہ ہیں، ان کو ایک شناخت دی جائے اور تعلیمی حیثیت ان کی بحال کی جائے، تعلیمی شخصیت مدرسے کو دی جائے، اور یونیورسٹی کی طرح، کالج کی طرح، ہر اکیڈمی کی طرح ان کو وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک کیا جائے، اور یہی واحد راستہ ہے۔ اس کو ابھی بھی نہ کریں، جس طرح فلسطین کے بارے میں ہمارے ملک میں بھی بات ہوتی ہے، باہر بھی ہوتی ہے، 2 ریاستی فارمولہ، یعنی اسرائیل بھی مان لو اور فلسطین بھی مان لو، تو فلسطین تو بن جائے گا، لیکن یہ اسرائیل کس جواز سے آپ مان رہے ہو ساتھ؟ تو اسی طرح اگر وزارت تعلیم کے تحت تعلیمی ادارے رجسٹرڈ ہونے ہیں تو پھر دوسرا آپشن کیوں رکھتے ہو آپ کہ ادھر بھی ہو جائیں ادھر بھی ہو جائیں، جس کی مرضی ہے ادھر چلا جائے، جس کی مرضی ہے ادھر چلا جائے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ باقی مثلا ٹی وی چینل کے لیے اختیار ہے